انفارمیشن اور میاں ابرار صاحب سیکٹری اوقاف، نہایت ہی قابل احترام معزز خواتین و حضرات، میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج سبھی کی خواہش تھی، میری اور راسخ کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ ہم دیر کر رہے ہیں اور اس نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے، تاکہ یہ تمام فیسلٹیز اس طریقے سے کی جائیں کہ جس کا فائدہ جو ہے یہ جو زائرین آتے ہیں یہ ان کو ہونا چاہیے، اور حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کے عقیدوں مندوں کی جو مشکلات ہیں ان کو ہم دور کریں، اور میکسیمم پارکنگ کے حوالے سے بھی کوئی پرابلم نہ ہو ان کو، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، اور اس کے لیے پلازا بنایا جا رہا ہے، انفراسٹرکچر کو بھی ہم ری آرگنائز کر رہے ہیں، ری ڈیزائن کر رہے ہیں، اور ٹوٹل تقریباً 4 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے، اور انشاءاللہ یہ ڈی جی صاحب 10 مہینے میں ہو جائے گا مکمل۔ ہاں جی 6-8 مہینوں میں ہو جائے گا۔ اور ابھی میں یہ بھی ذکر کر رہا تھا کہ جیسے مسجد نبوی میں وہ چھتریاں لگی ہوئی ہیں، اور مدینے میں وہ بھی ہم یہاں سین میں میاں رشید صاحب کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے یہ 25 کروڑ اس کے لیے علیحدہ ہم نے ایلوکیشن کی ہے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، اور انشاءاللہ یہ بہت خوبصورت، اور پھر اس کی ہم وہاں پاک پٹن میں بھی یہ چھتریاں جو ہیں وہاں آرگنائز کر رہے ہیں، اور وہاں بھی ہم سہولتیں دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ کہا ہے کہ جو لنگر ہوتا ہے ان کا اس کے لیے بھی گرانٹ دی جائے، اور اس کا کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے فوڈ اتھارٹی کو ہم نے کہا ہے کہ وہ اپنا پرماننٹ آفس ایک ادھر رکھیں، تنگ نہ کریں لوگوں کو، مطلب کھانا ہی نہ بند کر دیں اندر کر کے، لیکن کوالٹی چیک کریں، کوالٹی ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ جو پیدل چلنے والے زائرین ہیں اور جو عمر رسیدہ ہیں ان کے لیے لفٹوں کا بھی انتظام ہم کر رہے ہیں یہاں پہ بھی اور پاک پٹن میں بھی، اور اس میں ایسکیلیٹرز وغیرہ لگا رہے ہیں نا جی ڈی جی صاحب، ہے نا 4 لفٹیں ہیں، اچھا وہ لفٹیں پھر اوپن طرح کی لگانا نا، شیشے والی جو ہوتی ہیں، تاکہ وہ بزرگ بھی ہوتے ہیں نا وہ پھر ڈرتے ہیں بیٹھتے لفٹ میں۔ اسی طرح میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے ہم نے میاں اسلم اقبال صاحب یہاں بیٹھے ہیں، معزز صاحب بھی تھے کل ساتھ، تو ہم نے جو لاہور کو پیکیج دیا ہے، ٹوٹل پیکیج جو ہے یہ 20 ارب کا ہے، اس میں سے ہم نے کل جن کے افتتاح کیے ہیں کوئی 15 ارب کے قریب ہیں وہ، اور اس سے پہلے ہم دوسرے بھی جو پروجیکٹ ہے، تاکہ لاہور کو ہم نے اوپن کر دیا ہے، ایک تو شیخو پورے کی طرف سے، ایک جو روڈا کا جو پروجیکٹ ہے ہمارا عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس کے حوالے سے وہ ہم نے علیحدہ وہاں رنگ روڈ دیا ہے، اور وہاں ایکسیس ہوگی آسانی کے ساتھ، اور پھر ملحقہ جتنی ہیں سڑکیں، سیوریج کا بھی انتظام میں نے بشر صاحب کو کہا تھا، اور کہ بھئی یہ سیکٹری ہاؤسنگ بھی اس میں شامل ہوں، اور فوری طور پہ نا ساتھ ساتھ ہی سائملٹینیسلی کام کر دیا جائے، جب آپ کا کام ہو رہا ہو ختم ہونے کے تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہو، تو پھر سارا ایک دم جو جب ہم کھول لیں تو تاکہ لوگ خوش ہوں کہ ہمیں کوئی اب دقت نہیں ہے کسی قسم کی اس میں جانے کی، اور پھر انوائرمنٹ کو بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ شیرامالا فلائی اوور، گلاب دیوی انڈر پاس اور شہکام فلائی اوور، یہ پہلے اربوں کے جو پروجیکٹ ہیں لاہور کے لیے، لاہور کو اپ گریڈ کرنے کا، یہ شریف مامے تو لاہور کے بنتے ہیں، کام نہیں کیا انہوں نے، پیسے نہیں لگائے، بس کھانے پینے کا پروگرام ہوتا رہا ہے، جو کہ بعض تو آنا نہیں انہوں نے، تو یہ اسی طرح ہی کرتے رہیں گے۔ اور وہاں ایک اسٹیڈیم بھی میاں صاحب کے حلقے میں سبن آباد میں، اور شاہدارہ میں ملٹی لیول فلائی اوور، یہ سارے پروجیکٹ جو ہیں یہ ہم نے کیے، بلکہ داتا صاحب میں جب عرس ہوتا ہے خاص طور پہ اس کا انتظام ہمیں بہتر کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے دوران سڑکیں بھی بند ہو جاتی ہیں، اور جو زائرین ہیں جو باہر سے آتے ہیں
बेशुमार लोग आते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, अमेरिका तक से, कनाडा तक से, इंग्लैंड से, यूए से, इतने लोग आते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो हम जब कि फॉरेन एक्सचेंज वो लेके आते हैं और हमें उनको फैसिलिटेट करना चाहिए उनकी रिहाइश के हवाले से। जब वो दाता साहब आएँ, क्योंकि सारा दिन लोग इबादत करते हैं, रात को भी इबादत करते हैं, तो उनको एक किसी किस्म की तंगी ना हो, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव भी तौर पे भी पॉलिसी होनी चाहिए। और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा अपना डीजी साहब, तो फिर इंशाल्लाह हम इस काबिल हो जाएंगे कि एक बेहतरीन तोहफ़ा जो है, इससे बड़ा तोहफ़ा क्या है। दाता साहब की खिदमत जो ज़ायरीन करते हैं, उनके लिए जो आते हैं ज़ायरीन, उनको हम फैसिलिटेट करते हैं। आपने देखा नहीं कि मक्का मदीना में जितने भी आए रूलर आए हैं सऊदी अरेबिया के, उन्होंने बढ़ चढ़ के खर्च किया है और लोग जो हैं वो खुश होते हैं, जाके दुआ देते हैं। इसी तरह यहाँ भी इनकी दुआएं लगेंगी आपको। और जो दाता साहब की खिदमात हैं हज़रत अली अजवेरी की, वो तो अनगिनत हैं। और जहाँ जो इस्लाम आया है, ये मशाइख लेके आए हैं यहाँ इस्लाम। यहाँ ना कोई हुक्मरान आए हैं ऐसे कॉन्कर करके कि उन्होंने इस्लाम फैलाया हो, ना ही मुग़लों ने फैलाया है, ना ही शरीफों जैसे जैली मुग़लों ने इस्लाम फैलाया। ये इस्लाम फैला है अक़ीदतमंदों की वजह से। और ऐसी हस्तियाँ पाक पटन में जहाँ हैं, यहाँ लाहौर में हैं हज़रत अली हजवेरी, ये इन्होंने काम किए हैं, तो इस काबिल हुए हैं कि लोगों को इस्लाम जब इन्होंने कबूल किया, और फिर इनके बच्चे भी अब माशाल्लाह, फिर हम भी उसके ऊपर पहली दफ़ा तालीम के हवाले से भी एक यूनिवर्सिटी, ख़त्मुन नबीन यूनिवर्सिटी जो हमने बनाई है। और अभी आप भी ज़िक्र कर रहे थे कि ये एक सब्जेक्ट के तौर पर भी इंशाल्लाह इसके ऊपर भी रिसर्च होगी, और एमफिल लोग करेंगे, उनके लिए एक अच्छा सब्जेक्ट होगा कि ये जो आए हैं यहाँ हज़रत अली अजवेरी साहब, जिन्होंने दीन का काम किया। और इसी तरह वहाँ पाक पटन में वहाँ भी दीन का काम जो हुआ है, इनके ऊपर रिसर्च पेपर लिखेंगे, रिसर्च होनी चाहिए। और ये रखेंगे बाकायदा एजुकेशन में भी कि इनको डिग्री बाकायदा अवार्ड की जाए, ताकि लोगों को पता चले कि दीन का काम जो हुआ है बेहतरीन तरीके से किया गया। इसी तरह हमारी सबसे बड़ी खिदमत करने वाली दीन की जो जगह है वो रायबंड है। उसमें हमने देखा, उसमें भी डीजी साहब को बड़ा सवाब है माशाल्लाह। इन्होंने बेहतरीन काम किया है, लाइटें लगाई हैं, फिर पेट्रोलिंग पोस्ट बनी है, बेशुमार काम हुआ है वहाँ पे। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें 20 साल के हुक्मरानों ने, नवाज शरीफ और इन्होंने स्टोले ने, राना सनाउल्लाह जैसे बेवकूफ़ लोगों ने निगलेक्ट की हुई थी। ये तो इस तरफ आई नहीं ना, यहाँ लोगों के पर्चे झूठे, यहाँ लोगों को तंग करना, या उनकी जेब में हाथ डालना, बल्कि अपने हाथ से ना देना किसी को, ना किसी गरीब आदमी की मदद करना, या उनके बारे में सोचना भी, ये तो उनके करीब से नहीं बात जाती थी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत और उनकी पॉलिसी के तहत ये सारा दीन के काम का फ़रोग़ का काम हो रहा है, और इसको हम जारी सारी रखेंगे। यही हमारा अक़ीदा है, और इसी से ही इस्लाम भी फैला, इसी से ही पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं और जो आइंदा आने वाली हमारी कौम है वो मज़बूत बन के उभरेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। माइक दे दो ने, माइक दे दो ने यार, इनू बुला लो। हाँ इतने माइक जरा नहीं माइक पे आ, इधर आ ना। इकबाल की ना आई है, इकबाल की ना आई है, इरफान नज़ीर कार्रवाई उत्ते गल अपना यार उन्होंने गल तो करन दो। चलो सर, ये बताएं कि रात भी आपके घर के बाहर खड़े रहे हैं और मर्जर की बातें हो रही हैं, शायद प्री मैच्योर हैं, और इमरान खान ने भी इंतज़ा ज़ाहिर किया है,
क्या पार्टी मर्ज करने का अंदाज़ा का आपका इरादा है? और क्या शहजाद साहब ने कल एक आपको नोटिस भी दे दिया है, तो अब पार्टी में मर्ज हो जाएंगे या नई पार्टी रजिस्टर करेंगे? नहीं, कोई मर्ज मुर्ज वाली बात नहीं है। अभी तो हम मशावरत जारी है। ये पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने दावत दी थी मोनस को, फिर मुझे भी कहा कि आप सदर बन जाएँ पार्टी के, लेकिन अभी हम इसके ऊपर कोई हतमी ना राय कायम हुई है ना फ़ैसला हुआ है। इनको पहले ही तकलीफ़ शुरू हो गई है कि जी के इनको पार्टी से हम नोटिस दे रहे हैं, और वो मौका ही नहीं इंशाल्लाह आएगा, क्योंकि अभी सभी ने कल कहा है, जितने हमारे 10 के 10 इलेक्टेड लोग हैं और दूसरे भी हमारी पार्टी के अहदेदार, कि भाई हमें पहले अपने हलके में जाके लोगों से मशवरा करना है, मशावरत करके उसके बाद हम बताएंगे। चौधरी साहब, आपने जो निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए 3 नाम पेश किए थे गवर्नर साहब को, उस पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा आसिफ का ये मौक़िफ़ सामने आया कि नासिर सईद खोसा जो है उनसे उन्होंने भी रब्ता किया, लेकिन वो मुतफ़िका तौर पर निगरान वज़ीर-ए-आला बनने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। ये मौक़िफ़ उनका था। दूसरा, आप काफ लीग से राहें जुदा करने की कोशिश आपकी हो रही है। इमरान खान को आपने कहा कि वो आपके लीडर हैं। क्या चौधरी शुजात के अंदर वो सियासी फ़हम और फ़रासत कम हो गई है, या उनके पास सियासी दावपेच कम हो गए हैं जो आप उनको छोड़कर इमरान खान की तरफ जा रहे हैं? पहले तो ये है कि आपने जो बात कही है, देखिए मेरी बात सुने, ये फ़ैसले जो हैं ये तो पार्टियां बैठ के अपने साथियों के साथ करती है, और इमरान खान साहब नो डाउट हमारे लीडर हैं। उन्होंने मुझ पर इत्मीनान किया, और इतनी उनकी बड़ी पार्टी है माशाल्लाह लाहौर में, पाकिस्तान में, तो उन्होंने मुझे वज़ीर आला इलेक्ट कराया, तो मैं कैसे उनका एहसान भूल सकता हूँ। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि अब कराची में आपने देख लिया कि जमात इस्लामी जो है वो पीपल्स पार्टी को पछाड़ गई है, और साथ साथ उनके जो तहरीक इंसाफ है, तो आप क्या समझते हैं कि कराची में क्या सूरत हाल होगी, और उसका असर क्या मुल्क के आइंदा इलेक्शन में भी नज़र आ रहा है आपको कि वही सूरत हाल जो है अब नो पीपल्स पार्टी की बाकी सूबों में भी? उसमें मेरी बात सुने कि ये जो आप कह रहे हैं ना कराची के जो इलेक्शन है, उसके ऊपर अब तो ज़ाहिर बल्दियाती इलेक्शन जोड़ तोड़ का इलेक्शन है और समझदारी से चलने का इलेक्शन है। उसमें प्लेयर भी काफ़ी हैं। हो सकता है जो जमात इस्लामी है वो कभी नहीं चाहेगी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ नथी हो, और वो चाहेगी तो दूसरे नंबर की जो पार्टी आई है वहाँ इलेक्शन जीत कर PTI, उनके साथ वो राब्ते में भी हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो सही फ़ैसला करेंगे। और वहाँ ये कोई नहीं फ़र्क पड़ता, 3 नाम अगर हमने दिए हैं ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अगर नहीं आना चाहता, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने जो 3 नाम दिए थे उसमें जो जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा सईद साहब हैं, उन्होंने भी इनकार किया है, तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो पंजाब की सियासी सूरत हाल है, 300 से ज़ायद नशिस्तों पर इलेक्शन होना है, असम्बली तहलील हुई है। आज KPK के वज़ीर आला भी एडवाइस भेज रहे हैं गवर्नर को, ये 2 असम्बलियाँ हो जाएंगी, उसके बाद इमरान खान कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने या कौमी असम्बली में वापसी का फ़ैसला आज करेंगे। क्या आप समझते हैं कि इतनी बड़ी रिहर्सल जो है ये अलहदा होगी? बलोचिस्तान असम्बली है, सिंध असम्बली, आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में कि इलेक्शन जनरल होगा या अलहदा असम्बलियों का होगा? देखिए, इलेक्शन जनरल ही होगा, इसलिए कि कुछ चीज़ें अभी पसे पर्दा मुज़ाकराती स्टेज पे हैं, और आपको जल्द पता चल जाएगा कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि लोगों की डिमांड है और इनको समझ नहीं आ रही बेवकूफ़ों को कि ये डिफ़ॉल्ट कर रहा है हमारा जो मुल्क है ना। खुदा न खास्ता कहीं ऐसी सूरत हाल ना हो जाए श्रीलंका वाली, तो उसको बचाने के लिए सारे तमाम हल्के सर जोड़ कर बैठे हैं, और वो यही फ़ैसला कर रहे हैं आजकल। तो इंशाल्लाह ताला इनको जल्दी इलेक्शन कराना पड़ेगा, और विदिन 3 मंथ्स इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। हाँ जी, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि खुसूसी एडवाइस आई है कि FIA ने दोबारा कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि नैब वो पर्चे ख़त्म कर चुकी है? यार पहली दफ़ा इन्हें पर्चे शुक्र करो हाली उन्होंने मर्डर केस नहीं कराए, इन्होंने लगे रहने दो, इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पैंदा। इन्हों की वारी आ जाएगी इंशाल्लाह, जेडे इस तरह के लोग ने इन्हों की वारी आ जाएगी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।